ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣक्य ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। So as you all know, we have started this lecture series on ethics, and this is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS Mains, which is going to be held on 1st of April as per the official notification, right? And I hope you are preparing very well for that exam. We have already covered a lot of lectures in this particular series, and this is in continuation of that only. And if you haven't watched those lectures, I will seriously recommend you first go watch those lectures, and then after this lecture, right, पहले lecture देख लीजिए, then you can move on to that lecture, right? पहला lecture देख लो, फिर वो lecture ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? So with all this information, now let's start our lecture of the day. ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ topic ਰਹੂਗਾ by the way probity in governance, right? We will be starting a fresh topic today. Okay, but before just starting our lecture, a very useful information, right? Mains brain box, ਚਾਣक्य IAS Academy ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਮੇਨਸ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁਕਲੇਟਸ ਪਲਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਸੀ ਹੇਅਰ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹੂਗਾ 8000 ਰੁਪੀਸ ਓਨਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 5000 5k ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਵੈਰੀ ਥੋਰਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਬੁਕਲੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂਗਾ। So if you haven't subscribed to any test series, right, you can definitely opt for it. That is completely recommended from my end. Okay, and if you have any query, you can definitely call on to चाणक्य IAS Academy. This is a very affordable option for you, right? कुछ खास charge नहीं किया जा रहा थोड़े तो। Okay, so now with this, let's start our lecture. Okay, अपना topic है by the way, see here, section 2 governance तो ठीक है, इट विल बी प्रोबेटी इन गवर्नेंस। नाउ व्हाट कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसमें से? कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेटी, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, challenges of corruption. These all topics will come under this particular topic, probity in governance. By the way, किस topic का part है ये? It comes under administrative ethics. See this both, आपके जो दोनों part हैं, value in ethics in governance and probity in governance, ये administrative ethics में आते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले कौन सा टॉपिक कवर किया था? इससे पहले हमने फिलोसॉफिकल बेसिस कवर किया था अभी, right? Ethics in society is done, human value is done, we have covered all this part. Now we are moving on to this part. ठीक है, चलो तो with this let's start our lecture. Probity in governance. Okay, so as you can see there are two words here, probity and governance. Before moving on to probity, sorry, we should first understand the concept of governance. Like, what is governance? What is governance? So गवर्नेंस के अंदर दो पार्ट आते हैं। सी गवर्नेंस इंक्लूड्स टू थिंग्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग तो आएगी इसमें, और उसके अलावा और क्या आएगा? इट विल इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, राइट? यानी कि द प्रोसेस बाय विच the decision making is implemented. Process by which this decision making is implemented. ठीक है, पहला पार्ट डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ, देन इम्प्लीमेंटेशन, दोनों चीजें आती है गवर्नेंस में। ठीक है, अब आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ठीक है ये एस्पेक्ट तो हमने देख ली, बट इफ आई टेल यू इन द सिंपलेस्ट सेंस व्हाट इज गवर्नेंस? बेसिकली गवर्नेंस इज सर्विस डिलीवरी। वो मतलब कि एक तरफ आपकी क्या है, गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ आपके क्या है, सिटीजन्स है। नाउ एज सिटीजन
यू पे टैक्सेस, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो उसके बदले में, टैक्सेस के बदले में आपको क्या देती है, सर्विस। तो ये जो सर्विस वाली एस्पेक्ट है बेसिकली ये गवर्नेंस है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा कि लाइक द वे दे प्रोवाइड दिस सर्विस, दैट इज योर गवर्नेंस एस्पेक्ट, कि आपने टैक्सेस लिया हुआ है और उसके बदले में कैसे सर्विसेज मिल रही हैं। दैट इज द रीजन इसके अंदर ये दो चीजें आएंगी कि सर्विस वाले एस्पेक्ट के अंदर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस थ्रू विच दिस डिसीजन मेकिंग इज इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। अब पब्लिक पॉलिसी किस लिए करी जा रही है, सिटीजन्स के लिए करी जा रही है, सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए करी जा रही है, राइट, क्योंकि सिटीजन टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का बनता है काम कि लाइक उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू ही प्रोवाइड करी जा रही होती हैं। यस और नो? तो उसके अंदर पहला एस्पेक्ट आएगा कि वो जो पब्लिक पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट स्कीम है, उसको बनाने का, लाइक इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको आप डिजाइन करते हैं वो। यस और नो? दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग। देन बना दी, उसके बाद उसके सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर हो गए, बेसिकली मिनिस्ट्रीज करती हैं, उन्होंने काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके थ्रू उसको सोचा होगा। देन कम्स कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने बना तो दिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करोगे उसको वहां पर। अब इम्प्लीमेंट वाले पार्ट इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन जस्ट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे इंडिया लैग भी कर रहा है, ये सबसे टफेस्ट पार्ट भी होता है, ठीक है, इधर हम लैग भी करते हैं, राइट। चलो, तो आई होप एज सच गवर्नेंस की डेफिनेशन जरूर आपको क्लियर होगी। अगर एग्जाम में जैसे आपके आए, ठीक है, आप सिंपली लिख सकते हैं गवर्नेंस इज सर्विस डिलीवरी दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजन मेकिंग इज implemented, as simple as that, right? ओके, अब ठीक, अच्छा एक चीज और आपको, वैसे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लाइक तीन टाइप की चीजें होती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, ठीक है। ये जी टू जी को फिर भी आप इग्नोर करिए एक बारी के लिए, पर ये दो चीजें हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। अब ये क्या है कि लाइक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को भी हेल्प कर रही है, कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट को करेगी, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट टू बिजनेसेस कि लाइक बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर, लाइक कोई यूनिवर्सिटी बननी है, लेट्स से प्राइवेट, सॉरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बिल्ड होनी है, उसके अंदर एक ऑडिटोरियम बिल्ड करना है आपको, गवर्नमेंट को बिल्ड करना है, यूनिवर्सिटी वालों को बिल्ड करना है, तो व्हाट विल यू डू, वो एक टेंडर निकालेंगे, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएंगे, बिजनेसमैन को बुलाएंगे कि भैया आप इसमें आइए, टेंडर पास करिए, ठीक है, अपनी अमाउंट बताइए, कौन कितना चार्ज करे, अकॉर्डिंगली टेंडर पास होता है और वो प्राइवेट वाले को मिल जाता है बिजनेस, तो वो आएगा आपका जी टू बी के अंदर। क्या ये सर्विस डिलीवरी में आएगा? तो ये ऐसा सर्विस डिलीवरी में नहीं आएगा, ये वाला जो एस्पेक्ट है ना जी टू सी वाला, ये सर्विस डिलीवरी में आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, खैर, ठीक है। चलो, अब आते हैं कि गवर्नेंस की भी काफी सारी एस्पेक्ट्स होती हैं, ठीक है, लाइक दे कैन बी यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट, सो गवर्नेंस कैन बी यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट। व्हाट डज इंक्लूड? जनरली जो हम गवर्नेंस को समझ रहे होते हैं गवर्नमेंट के साथ रिलेट करते हैं कि वो सर्विस डिलीवरी करते हैं और किस टाइप से करनी है, ठीक है, बट गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, उसके अंदर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस भी आएंगी। So what I am trying to tell कि governance can be understood in several contexts like corporate governance. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी, बट अभी के लिए सिंपली समझो कि कॉर्पोरेशंस के अंदर जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस है, वहां पर भी तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, बदले में पैसे मिलते हैं उनको, जैसे हमारे को गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहे हैं, तो उसके बदले में वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, कुछ भी, तो उसके अंदर वो किस हिसाब से कर रही हैं, इंटरनल अफेयर्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, एक्सटर्नल को भी, आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रही, फेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इंटरनली किस हिसाब से चीजें चल रही है, अपने अपने एम्प्लॉयज को कैसे मेंटेन करते हैं, काफी सारी एस्पेक्ट्स आ जाएंगी। बट अभी के लिए सिंपली समझिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर से कॉर्पोरेशन है, वहां की जो सर्विस डिलीवरी है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। देन इट देयर कैन बी इंटरनेशनल गवर्नेंस एज वेल, इंटरनेशनल
गवर्नेंस। क्लियर? ठीक है, आई होप यू कैन रिलेट नाउ। नेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस, एंड इट कैन बी लोकल गवर्नेंस एज वेल, लोकल गवर्नेंस। ठीक है, राइट। सो ये एस्पेक्ट्स होती हैं। सो in one more way you can understand that governance represents the norms. ठीक है, it represents the norms, values and rules, right, and rules of the game, and rules of the game through which, right, through which public affairs are managed, through which public affairs are managed. राइट, डू नोट दिस डाउन। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ जैसे तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट डाउन करते रहना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको सही लगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, ये ज्यादा बेटर वे रहता है चीजों को समझने का। सी गवर्नेंस रिप्रेजेंट्स द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रूल्स ऑफ द गेम थ्रू विच द पब्लिक अफेयर्स आर मैनेज्ड। नाउ यू कैन रिलेट, राइट, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इन चीजों को, यही समझा हमने भी। पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो होती हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसेस को गवर्नेंस का कवर करते हैं। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी लिंक कर पा रहे हो क्या आप? ठीक है, ओके। और जो मशीनरी ये सब करने के लिए डिजाइन की जाती है उसको क्या बोलते हो आप? गवर्नमेंट। द मशीनरी, द मशीनरी डिजाइन, द मशीनरी डिजाइन इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट। ठीक है, सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक और एस्पेक्ट भी आएगा, ठीक है, तब पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी, कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट जो गवर्नेंस के जो एस्पेक्ट है, ठीक है, वो वाली एक पार्ट भी आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, बट अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको और भी ज्यादा, राइट। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोबिटी। ठीक है, सो प्रोबिटी। अब प्रोबिटी की जब हम बात करते हैं तो इट मींस, अगर मैं एक वर्ड में बताऊं पहले स्टार्टिंग में, सिर्फ प्रोसीजरल इंटीग्रिटी, प्रोसीजरल इंटीग्रिटी, और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो से मॉरल राइटियसनेस, मॉरल अपराइटनेस, मॉरल मॉरल अपराइटियसनेस। ठीक है, सेकंड, मॉरल अपराइटियसनेस। ठीक है, दीज टू थ्री थिंग्स। अब प्रोसीजरल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी थ्रू आउट, राइट। ठीक है, इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी थ्रू आउट, लाइक इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपको किसी वैल्यू पे टिके रहना है। ठीक है, आपको वैल्यू, अगर आपकी कोई पर्सन, आपके मॉरल्स हैं अपने, ठीक है, कोई वैल्यूज हैं आपकी जो इम्बाइब है आपके अंदर, उसको आप चाहे आपके थॉट्स, एक्शन, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आप हमेशा उसको फॉलो करो, उस पर टिके रहो। वॉक द टॉक वाली जो चीज होती है, भले ही वो गलत वैल्यू क्यों ना हो, नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट आप फिर भी उस पर टिके हो, वो आपकी इंटीग्रिटी है, उस बंदे को इंटीग्रल बोलते हो, राइट। सो यू कैन से प्रोसीजरल इंटीग्रिटी। और प्रोबिटी की, जब हम प्रोसीजरल इंटीग्रिटी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा ही उस पर टिके रहना, कि चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो प्रोसीजरल इंटीग्रिटी मींस ऑनेस्टी इन डिसीजन मेकिंग, इट मींस ऑनेस्टी इन डिसीजन मेकिंग, राइट। इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, तब भी अगर आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी को, अपनी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाओगे? आप प्रोबिटी को फॉलो करते हुए कहलाओगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको, राइट। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बट
एग्जाम्पल से पहले अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, एक डेफिनेशन लिखवाऊं आपको कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, अगर आपको सिंपली एक डेफिनेशन भी लिखनी हो तो राइट डाउन, इट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, right, and and following them with honesty and integrity, and following them with honesty and integrity। ठीक है, राइट। अब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी में डिफरेंस आई, आप पता होगा आपको। ऑनेस्टी तो होता है कि बस आप लॉज को फॉलो कर रहे हो, हमेशा लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप ऑनेस्ट हो, सिंपल। ठीक है, और अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें तो आपके जो वैल्यूज है, जो मॉरल्स हैं, उस पर आप हमेशा टिके हुए हो। ठीक है, उस पर कंसिस्टेंट हो एकदम, एब्सोल्युटली, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है आपका। तो आप क्या हो, इंटीग्रेट इंटीग्रल हो। और उसी के अंदर अगर आपके के साथ में स्ट्रॉन्ग, आपके जो मॉरल्स है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू पॉजिटिव थे। ठीक है, जो आपके मॉरल्स है पॉजिटिव साइड थे, आपकी जो मॉरल वैल्यूज थी वो पॉजिटिव थी बहुत सारी। उसके साथ साथ उन्हीं मॉरल वैल्यूज को आप ऑनेस्ट भी हो और इंटीग्रिटी भी हो आपके अंदर, तो वो सब मिल के क्या कहलाएगा, प्रोबिटी कहलाएगा, राइट। तो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही रहती है ये चीज। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रिटी करेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल भी बताऊंगा कि प्रोबिटी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है बेसिकली, एक माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तब अच्छे से समझेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाइए बस, एक बारी खाली सी प्रोबिटी पे रहिए। ठीक है, आपको डिफरेंस भी क्लियर होगा। तो प्रोबिटी सिंपली मींस कि हैविंग ऑनेस्टी, आपकी स्ट्रॉन्ग, आपके जो मॉरल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स अलोंग विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इट हैज अ मीनिंग पर्टिकुलर। अभी क्लियर हो जाएगा आपको ये 2 मिनट में, या चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, इसको पहले समझ ही लेते हैं, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड प्रोबिटी, ठीक है। सो ऑनेस्टी इज जस्ट कि आप लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, लिमिट में रह के फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपको जो लॉ कह रहा है आप उसके अंडर है, बात खत्म, उसके दायरे में है, सही है, आप ऑनेस्ट हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेग्रिटी, इट मींस कि आप जो वैल्यूज है आपकी, मॉरल वैल्यूज है आपकी, ठीक है, फिर द वैल्यूज इटसेल्फ कैन बी इनकरेक्ट, लाइक वो नेगेटिव वैल्यू भी अटैच कर सकती है आपकी, राइट। कि अब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है कि लाइक आपके हिसाब से गुस्सा करना, एंगर करना गलत ही नहीं है, आपके लिए वो ठीक है। या आपके लिए लाइंग, झूठ बोलना आपके हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वो वैल्यू थी, लेकिन आप कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली झूठ बोलते कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, राइट। तो वो आपके लिए क्या है, इंटीग्रिटी के अलावा इस केस में भी आप। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप्स, आपके मॉरल वैल्यूज इसको सही बताते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इन जनरल, बट कईयों के लिए चीज सही नहीं है, कईयों को गलत लगता है ये, राइट। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल कई जगह पेट्रियार्कल सेटअप है किसी घर में, तो वहां पर विमेन की ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, बट आप उनके घर में पेट्रियार्कल सेटअप था, तो उनकी इंटीग्रिटी, उनके मॉरल वैल्यूज ऐसे ही बने हुए कि विमेन के लिए ज्यादा, वुमेन को पोजीशन को नीचे ही रखना है हमेशा। तो अगर वो बंदा इन एंड आउट, लेकिन जब कोई देख रहा है नहीं देख रहा, अपनी उस वैल्यू को फॉलो करे। इन सिंपल लैंग्वेज आई टेल यू कि जो भी आपकी वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आप उस पर टिके हुए हैं, इन एंड आउट जो आप बोलते हैं वो करते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, इंटीग्रिटी, राइट। कंसिस्टेंट हो उसके ऊपर आप, मतलब आपके थॉट्स और एक्शंस दोनों मैच करते हैं, सिंपल। योर थॉट्स एंड एक्शन मैच विच इधर ईच अदर ऑल द टाइम, तो उसको क्या बोलोगे, इंटीग्रिटी बोलोगे। और प्रोबिटी क्या होगा, बेसिकली प्रोबिटी का मतलब है ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी आपके अंदर है, और हमें आपके अंदर साथ के साथ पॉजिटिव वैल्यूज है। तो इंटीग्रिटी वाली चीज आप हो, कंसिस्टेंट भी हो, और आप साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज है आपकी हमेशा। तो अच्छा अच्छा ही है सब कुछ, आपको ऑल द टाइम गुड गुड ही रहना है, अच्छा रहना है, बेसिकली ऑल द टाइम एथिकल रहना है, बेसिकली दैट इज प्रोबिटी। यू नीड टू बी एथिकल एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज प्रोबिटी। क्लियर हुई बात, राइट। ओके, सो लेट्स सी। अब प्रोबिटी जो है बेसिकली,
ये जनरली प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही होती है। प्रोबेबिलिटी की जो हम टर्म यूज करते हैं ये पब्लिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही होती है। लाइक सबसे नीचे बेसिकली आपकी क्या रहती है टर्म ऑनेस्टी, उसके ऊपर आपकी जाती है इंटेग्रिटी सबसे नीचे, ठीक है, और सबसे ऊपर आपकी क्या जाती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल है बाय द वे, ठीक है, और ये इन जनरल सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तभी होता है ये। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं लाइक इन पब्लिक लाइफ प्रोबेबिलिटी मीन्स maintaining probability means maintaining the the highest level of honesty and integrity of honesty and integrity, clear है, in personal, right, in personal and professional life, in personal and professional life by the public servant, ठीक है, in professional life by the public servant। लाइक इसका एग्जांपल जो भी लिव इन रिलेशनशिप मैंने दिया था कि लाइक अगर कोई नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है, कोई नॉर्मल सिटीजन है, लाइक लिव इन रिलेशनशिप जो है आज की डेट में लीगल भी है, ठीक है, एथिकल भी, कहीं एथिकल है या नहीं वो नहीं पता, बट लीगल जरूर है वो, राइट, एथिकल तो कहीं नहीं भी है, कहीं है, सोसाइटी के ऊपर वेरी करता है। लाइक बहुत सारी जगहों पे तो आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी क्या है आपके एथिकल है बहुत सारी सोसाइटीज में, हमारे यहाँ नहीं है, अलग बात है, मैं ये भी नहीं कहता करने चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स, राइट। सो यस, तो लिविंग रिलेशनशिप का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, लेट्स से लिविंग रिलेशनशिप आपके कोई नॉर्मल सिटीजन है, वो उसके लिए वो करेक्ट है, उसके लिए वो एथिकल है, और वो उस पर टिका हुआ कॉन्स्टेंटली अपने बिल्कुल प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो दैट वी विल से ही इज हैविंग इंटीग्रिटी, राइट, ओके, दैट इज इट। बट कोई अगर मान ले एसडीएम है, कोई आईएएस ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, क्या वो ऐसा काम कर सकता है, क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? पर्सनली वो जो मर्जी समझे, ठीक है, पर्सनली उसको जैसे मर्जी लगे, बट नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा रहना, ठीक है, उनके लिए वो बहुत गलत माना जाएगा, अनएथिकल माना जाएगा, बिकॉज उनके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी उनको बिल्कुल हाई स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज मेंटेन कर रखने अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तब वो प्रोबिलिटी के अंदर काउंट होंगे। कि जो भी हर मामले में, चाहे पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों जगह उनको क्या करना है, उनको वर्चुअस रहना है बेसिकली, तब वो क्या कहलाएगी, प्रोबिलिटी कहलाएगी। क्लियर हो रही है बात? यस और नो? या फिर इसको एक और एग्जांपल समझ लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मैं बात कर रहा था कि नॉर्मल सिटीजन जो हैं उनके लिए तो फिर भी चलो चल जाता है, ठीक है, लीगल भी है आज के डेट में, तो उनके लिए वो ठीक है, बट क्या कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई आईएएस ऑफिसर अगर वो कोई ऐसा काम करे तो उसके लिए क्या वो अनएथिकल माना जाए, सॉरी एथिकल माना जाता है? नहीं, सोसाइटी के लिए वो अनएथिकल वर्क है बहुत बड़ा, तो वो प्रोबिटी में काउंट नहीं होगा। प्रोबिटी तभी है जब उनको पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह एथिकल रहना है। क्लियर हुई बात? यस और नो? highest they need to be at all the times honest and integral, और साथ में स्ट्रॉन्ग वर्चीज होनी चाहिए, दैट इज द रीजन वी से दैट प्रॉपर्टी encompasses probability sorry encompasses all good virtues and values, all good values and virtues। यस और नो? समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, इट इज द एविडेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर, probability is the evidence of ethical behavior, it is the evidence of ethical behavior, ठीक है। एंड लास्ट, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है इसका, राइट, विच इज इट इज it is very much essential, it is very much essential for what, an essential and it is a vital requirement for the for efficient and effective for efficient and effective system of governance, effective system of governance,
and for the socio-economic development, and for the socio-economic development. अब यहाँ पर क्या होगा, सी होता क्या है कि जहां पर जो गवर्नमेंट है वहां पर अगर प्रॉबिटी फॉलो नहीं होती, इफ देयर इज नो प्रॉबिटी, ठीक है, गवर्नेंस एस्पेक्ट में प्रॉबिटी नहीं है, वो चीजें नहीं फॉलो हो रही, ठीक है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन जनरल, तो वहां पर क्या होगा, इसका मतलब वहां पर करप्शन दिखेगी आपको, ठीक है, उधर आपको करप्शन दिखेगी, उधर दूसरी प्रैक्टिसेस दिखेंगी, बैड इंप्लीमेंटेशन दिखेगी। होता क्या है, जब प्रॉबिटी ना हो तो जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स का ट्रस्ट भी इजीली बिल्ड नहीं होता, सिटीजन्स का ट्रस्ट इजीली बिल्ड नहीं होता, राइट, तो सिटीजन्स का ट्रस्ट इजीली बिल्ड नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि भरोसा ही नहीं है किसी सिटीजन को आपकी किसी पॉलिसी पे, तो गवर्नेंस में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इशू आती हैं बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, करप्शन एंड ऑल। तो जब प्रोबिटी होगी तो इट विल लीड टू वेरी इफेक्टिव वे ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, इन दैट सेंस इट विल डेफिनेटली हेल्प, राइट, बिकॉज देन द सिटीजन्स विल, इस केस में क्या होगा, सिटीजन्स विल रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट, सिटीजन्स विल रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट। क्लियर हुई बात, यस और नो? ओके, सो अगर प्रोबिटी आपको समझ आ गया होगा अब तक, ठीक है, प्रोबिटी जरूर आपको समझ आ गया होगा, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंटीग्रिटी एज वेल, ठीक है, इंटीग्रिटी भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक लाइन में जरूर बताऊंगा आपको, फिर डिटेल में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट राइट, इंटीग्रिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी? इट मींस नॉट ओनली ऑनेस्टी, इट मींस नॉट ओनली ऑनेस्टी, इट कवर्स नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट adherence, ठीक है, but adherence to moral, right, to moral and ethical principles, to moral and ethical principles and soundness of moral character, and soundness of moral character, ठीक है, इट सिंपली, ये डेफिनेशन है बाय द वे, लिख लेना, टाइप कर लेना, तभी लिखा है यहाँ पर, राइट, इट सिंपली मींस, इट मींस integrated within as well as outside, it means integrated within as well as outside, ठीक है, इन एंड आउट, थॉट्स और आपके जो एक्शंस हैं और जो आपकी स्पीच है, दोनों थॉट्स एंड एक्शंस बेसिकली दोनों क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हैं बेसिकली, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिव वर्ड यहीं से आया है कि दोनों दोनों जुड़े हुए आपस में, इंटीग्रेटेड है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है कि आप सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, यस और नो? आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब यही है यहाँ पर, ये जो आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ लिखा है इसका मीनिंग यही है आपके, कि आपके जो एक्शंस है, ठीक है, आपके क्या है जो एक्शंस, ठीक है, उनकी बात करें, आउटसाइड वर्ल्ड का एक और मीनिंग भी बेसिकली, फॉर एग्जांपल से बताऊं मैं इसको, कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो आपकी फैमिली की जब बात करते हैं, ठीक है, फैमिली की जब बात करते हैं तो वहां आप डिफरेंट ट्रीट करते हो, और जब कोई जनरल पब्लिक दूसरा कोई बंदा आता है, आउटसाइडर आता है कोई, ठीक है, उसके लिए आपके दूसरी वैल्यूज हो जाती हैं, तो अगर ऐसा कोई बंदा कर रहा है तो वो इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल वही है जिसके लिए दोनों के दोनों सेम होंगे, मॉरल वैल्यूज के चेंज नहीं हुए कभी, फिर चाहे वो कोई भी आए उसके आगे, सब उसको बराबर ट्रीट करते हैं वो, यस और नो? ठीक है, कभी आपने मूवी देखी है एक वासुदेव, वासुदेव नहीं सॉरी, वासु मूवी आई गेस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट मूवी, संजय दत्त की जो मूवी थी जिसमें उनकी मदर ने लास्ट में उनको गोली मारी थी, ठीक है, तो वो वहां पर जो उनकी मदर थी वो इंटीग्रिटी को शो कर रही थी कि गलत होने का उनका चाहे खुद का बेटा था, शी डिड दैट, ठीक है, यस, ओके, मतलब यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, द पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी वुड फॉलो द सेम स्टैंडर्ड,
फॉर वेदर इट इज अ पर्सन फ्रॉम हिज फैमिली और सम आउटसाइडर, सबके लिए उनकी इंटीग्रिटी सेम होती है, राइट। चलो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाने से पहले थोड़ा स्लाइड्स पे चलते हैं एक बार, राइट। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं पहले गवर्नेंस की डेफिनेशन, ठीक है। चलो, सो द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस गवर्नेंस एज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, राइट। द वर्ल्ड बैंक रेफर्स टू द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। आप बाय द वे इस डेफिनेशन को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, राइट। एक अच्छी डेफिनेशन है, आपको ये बेसिकली डेफिनेटली इसको लिख सकते हो आप। तो थ्री एस्पेक्ट्स कौन कौन सी, द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रेजीम, the process by which authorities exercise in the management of countries economic and social development, ये आई होप ये डेफिनेटली समझ आ रहा होगा। the capacity of government to design, formulate and implement policies and discharge functions, right। implementation वाली एस्पेक्ट, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वाली एस्पेक्ट, और वो द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिजीम, मतलब द फॉर्म पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्म्ड, जैसे एडमिनिस्टर करने की बात हो रही है, ठीक है। ओके, देन in 1997, the UNESCO defined governance as a process whereby citizen needs and interest can be articulated for the positive social and economic development of the entire society in the light of a perceived common good, right। In 1997, the UNESCO defined governance as a process whereby citizens needs and interest can be articulated for the positive social and economic development of the entire society and in the light of a perceived common good। बेसिकली सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए गवर्नेंस को सिटीजन्स के वेलफेयर से जोड़ा है यहाँ पर, कि गवर्नेंस अगर पॉजिटिव रहेगी तो डेफिनेटली वो क्या होगी, उससे सिटीजन्स का वेलफेयर होगा अच्छे से, और वो पॉजिटिव सेंस में होगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी में प्रोग्रेस आएगी, राइट। देन गवर्नेंस इज नॉट लिमिटेड टू एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, it is said that the task of governance is too difficult for the government to handle alone, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर भी आपके फर्दर गवर्नेंस के लिए काफी अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स, राइट, उसके अंदर फर्दर सब यूनिट्स भी होती हैं, यस और नो। ओके, सो गवर्नेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ब्रॉडर है, ब्रॉडर स्कोप है इसका, यस और नो, ठीक। देन this assertion that governance goes beyond the scope of government reflects the essence of democratic governance, which ensures continuous citizen participation and engagement in the process of governance. See, this assertion that governance goes beyond the scope of government reflects the essence of democratic governance, which ensures continuous citizens participation and engagement in the process of governance। Like स्पेशली डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं हम, ठीक है, डेमोक्रेसी भले डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों जगह आपकी जो सिटीजन की है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है, तो वो एक बेटर वे करने का चीजों को हमेशा ही, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स दैट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पर। लाइक स्विट्जरलैंड की बात करते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कोई पॉलिसी होती है सीधा सिटीजन से पूछा जाता है, पहले उनका ओपिनियन लिया जाता है, ओपिनियन मैटर करता है। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे भले डायरेक्टली ना पूछ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, उनके थ्रू बताया जाता होता है, यस और नो। So good governance promotes equity, participation, pluralism, transparency, accountability, democracy and the rule of law in a manner that is effective, efficient and enduring, right। तो गुड गवर्नेंस की बात है, ये एस्पेक्ट्स बेसिकली आपकी गुड गवर्नेंस के अंदर आता है। बैड गवर्नेंस होगा और एक गुड गवर्नेंस होगा, तो गुड गवर्नेंस इज एक्चुअली द रियल गवर्नेंस बेसिकली, बैड गवर्नेंस तो कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। गुड गवर्नेंस इज ओनली गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, राइट। व्हेन वी से इन जनरल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस ओनली, इन जनरल भी मीनिंग उसका गुड गवर्नेंस की तरफ ही होता है, ठीक है। चलो, देन इवन सेकंड एआरसी, ठीक, सेकंड एआरसी जहां मिले वहीं कोट करनी है आपको। तो सेकंड एआरसी हैज रिकॉग्नाइज्ड सम कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। फर्स्ट, rule of law, which requires that laws and their implementation be transparent, predictable, equitable and credible, ठीक है, ये होना चाहिए। यहाँ पर रिकमेंडेशन दी कि लॉज जब भी बनाओ तो ये वाले पार्ट उसके अंदर जरूर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए एंड क्रेडिबल होना चाहिए, राइट। देन अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर चाहे वो लोअर लेवल है, मिड लेवल है, हायर लेवल है,
हर जगह पर, आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर भी, वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, अकाउंटेबिलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। देन मिनिमाइजेशन ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रेशन, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रेशन, सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अपनी मन मर्जी ना चलाएं, पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए बेसिकली। पुटिंग द सिटीजन फर्स्ट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, तो बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी है, राइट। बताया गुड गवर्नेंस का वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होती है। देन गवर्नेंस टू बी बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन, यस और नो, प्रोबिटी, ये बेसिकली प्रोबिटी की तरफ है कि देयर शुड बी प्रोबिटी इन गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशंस होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ subsidiarity which implies both devolution and delegation of authority, devolution and delegation। आई होप इतना आपको जरूर डिफरेंस पता होगा डिवोल्यूशन में और डेलीगेशन में, पॉलिटी में पढ़ते हैं, और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं आई एम एक्सपेक्टिंग उनको इतना जरूर पता होगा, राइट। अगर आपको ये नहीं पता तो जस्ट कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, आई विल एक्सप्लेन देयर आल्सो ओनली कि व्हाट इज डेवोल्यूशन एंड व्हाट इज डेलीगेशन, राइट। तो ये फॉलो करनी होती है आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको मेंशन करना है गुड गवर्नेंस जब भी पूछा जाए आपसे, ओके। एंड व्हेन इट वी टॉक अबाउट प्रोबिटी, so the concept of good governance is now being extended to the concept of ethical governance and this forms the basis of probity, ठीक है। गुड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एथिकल गवर्नेंस, और एथिकल गवर्नेंस बोले तो प्रोबिटी, यस और नो, ठीक है, देख चुके हम। प्रोबिटी मींस बीइंग मॉरली एंड एथिकली अबव रिप्रोच। Probity in governance is sum total of public spirited values like integrity, honesty, uprightness, dedication to public service and objectivity। Clear? एक और अच्छी definition है आपके लिए। Probity implies not just absence of dishonest behavior, right? Absence of मतलब वो तो खाली honest होना ही हुआ ना, ठीक है, वो सिर्फ एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, सिर्फ honest होना probity नहीं है बेसिकली। Not absence of dishonest behavior or corruption, but also an added element of ethical trust। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई एसडीएम है, उनके पास सामने से कोई बंदे आते हैं, कोई लेडी आती है, कोई ओल्डर एल्डर एज आती है, वल्नरेबल सेक्शन की लेडी आती है, वो एक्चुअली डिजर्व करती है, ठीक है, कोई स्कीम के अंडर, बट हुआ क्या कि उनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, राइट। सो एक इसके अंदर लेट से एक केस के अंदर वो बंदा क्या करता है, भैया आप एलिजिबल नहीं, आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो क्या वो बंदा डिसऑनेस्ट है? नहीं, वो ऑनेस्ट है, उन्होंने लॉ के अंदर बात करी है, किसी को फिजूल में नहीं उनको भेजा वैसी, ठीक है। क्या उन्होंने करप्शन करी? बिल्कुल करप्शन नहीं करी, उन्होंने कोई ब्राइब नहीं मांगी, कुछ नहीं करा, तो वो, बट क्या वो एथिकल थे? तो यहाँ बात आती है प्रोबिटी की। एथिकल तब माने जाएंगे कि वो उनकी हेल्प करें, ठीक है, उनको किसी तरीके से उनकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन में जितना उनके एंड से हो सकता है अपने एंड से पूरा जोर लगाए कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए और उनको वो स्कीम जिसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, उनका हक बनता है उनको मिले। तो अगर वो ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो वो एथिकल कहलाएंगे, या फिर आई विल से द प्रोबिटी शो करी उन्होंने उस केस में, ठीक है। और वो कब होगा? जब उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज होंगी, वो इंटीग्रल होंगे, तभी वो ये कर भी पाएंगे, तभी ऑनेस्टी प्लस इंटेग्रिटी प्लस स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, दैट इट विल देयर थ्री, ये तीन चीजें मिलके बनाती हैं क्या? प्रोबिटी, ठीक है। आई विल से लाइक दिस, अगर ये ऑनेस्टी है, ठीक है, ये अगर इंटेग्रिटी है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज है, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, देन दिस पार्ट, दिस इज कॉमन, ये क्या बोलेंगे आप इसको? प्रोबिटी बोलोगे, ये है प्रोबिटी बेसिकली। क्लियर? ओके, सो विद दिस आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। कल से इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और एस्पेक्ट समझेंगे इस डायमेंशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके डेफिनेटली काम आने वाला है ये टॉपिक, राइट। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर ओनली, आई विल मीट यू टुमारो, राइट। एंड कंटिन्यू करिए इस लेक्चर सीरीज को, आपको बहुत हेल्प होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम हेयर फॉर यू, आपके एग्जाम के लिए ही आई एम, right? Okay, so with this I wish you ultimately good luck, right? And I wish you good luck for your future endeavors as well. So take care and bye bye, thank you, we will meet in the next lecture.